आज आपको मेरी आवाज बहुत सुननी पड़ेगी. Yeah, friends, as we have decided and as suggested by Sangeeta, I have been taking this session of GGM, that is Goli Ko Goli Maro, and it is very interesting because I want everybody of you should at least attend this workshop so that you can get all the benefit of this workshop and 100% आपको कुछ ना कुछ benefit मिलेगा ही इस workshop से, and that is what I feel. What is this? This workshop is conducted by Dr. Dhiren Sareen and his wife, Dr. Pooja Sareen. They both are naturopaths and they live in Ahmedabad. I think Ahmedabad, yeah, Baroda. Do you remember, Vaishali, where do they stay? Somewhere in Gujarat. And through this workshop, they tell us how to take care of our body. And through the nature's way, how the nature teaches us, जो हम खाना पीना खाते हैं तो जैसा नेचर चलता है, how it works, उसी हिसाब से वो हमें बताते हैं कि आप कैसे अपने बॉडी का ख्याल रख सकते हो और आपके डिजीजेस completely क्योर हो सकते हैं. And you can completely detox your body by eating only vegetables and fruits. How can you detox your body? Also by giving some few methods he has given us to detox, which is we have to follow few techniques which are little tricky, which we have to learn how to follow that, but then he tells us exactly how to do it and we have to follow that techniques. तो उनका कहना है डॉक्टर का कि अगर आपको ये जो डिजीजेस हमें जो होते हैं ना, क्यों होते हैं, only there is a one reason for us to carry whatever diseases we have, right from cancer से लेके कोई भी disease आपको क्यों होते हैं, because there is a excess of excreta in our body, जिसे वो हमेशा कूड़ा 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 के नाम से ही बोलते हैं. कहते हैं हमारे पेट में जो कूड़ा पड़ा रहता है, हमें लगता है कि हमारा पेट साफ हो गया, हमें लगता है हमें डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, हमें लगता है हम कुछ भी खा सकते हैं और पचा सकते हैं, पर एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम आवर गट. Gut is a second brain, that we all know, that gut is our second brain. What we can't think from here, we think from our stomach. तो कहते हैं जो हम स्टोर करते हैं अपने पेट में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, that turns into acid, अम्ल, और that अम्ल जो है या एसिड जो है, it ruins our system, all the systems, and then our diseases start. And he says that the only way you have to clean your system is by detoxing it, by eating an ideal diet. So what is the natural way to detox? He says the natural way to detox is that, जैसे हमें योगा में भी बताया है कि वमन धौती जो बोलते हैं या कुंजल क्रिया जो हम कहते हैं, स्टमक को कैसे साफ करना है, वो आपको वो करने को कहते हैं आपको पूरा 1 week. See, ये 14 days का कोर्स है, 14 days में से 1 week he says कि you have to follow the कुंजल क्रिया. कुंजल क्रिया रहता है कि you have to have that lukewarm water, जो है थोड़ा सा गर्म पानी में नमक डालो और 4-5 ग्लास पानी पी जाओ सुबह सुबह खाली पेट, right? And then you have to just vomit out all that water by putting 2 fingers in your mouth, and you have to take out that water. So whatever is in the stomach lining में जितना भी acid formation होता है या थोड़ा बहुत भी कुछ चिपका रहता है, तो everything comes out through that. So you have to do this 1 week. Then he says you have to, it takes care of weakness, acidity, nausea, anxiety, cough and cold if you do this regularly. Then you have to do enema, which is clean our colons. तो एनिमा आप वो घर में बताते हैं कैसे करना है. There's an enema box which you get it, and it's very easy. बड़ा डर लगता है एनिमा का नाम सुन के कि oh my God, एनिमा घर में कैसे करें. Believe me, I am doing it. I am doing it right now also every day. Both the things I am doing regularly, and it is not difficult and it helps your system so much. आप believe भी नहीं कर पाओगे, आपके आधे problems तो आप एनिमा करके खत्म हो जाते हैं. So it cleans your colon and it treats your constipation. It helps your digestive system become much more better. Wet pack करके वो कहते हैं आपको follow करना है. Wet pack यानी वो there is a 3 पट्टियां रहती हैं, वो गीली करनी है आपको ठंडे पानी में और 30 से 40 मिनट तक आपको सिर पे लगा के रखना है, फिर गले में बांध के रखना है और आपके पेट पे, स्टमक, दैट इज नाभि के ऊपर, ऑन योर नेवल एरिया, यू हैव टू कीप दैट फॉर 40 मिनट्स. इट इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन एंड टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करता है. तो उनका कहना है इससे भी अपनी डाइजेशन में बहुत फर्क पड़ता है. I did not do it regularly. Frankly speaking, this is the only thing which I could not do it regularly. But the people who have done is that they swear by it. They say it helps them a lot. So must be helping it.
एंड देन ही टॉक्स अबाउट साइंस ऑफ गिविंग. वो कहते हैं ये चीज तो है ही, डाइट के बारे में भी बात किया उन्होंने, पर देन ही कॉल्स ऑफ दैट व्हाट यू गिव पीपल डे टू डे बेसिस पे. It helps you to assimilate your food. It helps you to have your clear conscience. It helps you to have a happy mind, which helps you in a better digestion. So give anything. आप किसी को रोज खाना खिला दो, आप अपने थाली में से या एक्स्ट्रा खाना बना के किसी को, अपने घर वालों को, वॉचमैन को, वॉट एवर ही सेज कि यू गिव टू एनीवन. कोई उस समय आया है उसको, जैसे हम अतिथि देवो भव, हमारे में है ही ये प्रथा की जो भी आता है हम खाने के लिए पूछते हैं, तो ही सेज कि यू गिव दैट. Start with food, then give money, then give your smile. So whatever you can give. If you don't have anything else, he says just smile and talk good with people. Give selflessly, do something for others daily. Then he also talks about that dashansh तुलादान, that is आप अपने जो भी आपका ये आमदनी है उसमें से 10% आप दूसरों के लिए निकाल के रख दीजिए, विच हेल्प्स. तुलादान एक, वो पहली बार मैंने सुना तुलादान, आपके वेट के बराबर आप कुछ भी कुछ अन्न जो है आप उतना आप लीजिए. जैसे आपका 58 केजी वेट है तो आप 58 केजी कुछ भी चावल गेहूं कुछ भी आप तोलो, और उसके बाद एक कपड़ा, यूज्ड कपड़ा एंड सम मनी, यू गिव इट टू अ पंडित. He talks about pandit, but you can give it to any needy person. You can go to orphanage, you can go anywhere and you can give that. It helps, and many people in the workshop, many people have got the benefit after Tuladan. उनमें बहुत फर्क पड़ा है. Then last he talks about meditation. Again meditation, हर चीज हर जगह meditation आ ही जाता है. I will talk about meditation again later. Then he says the food habits are based on our chronology of our 5 elements. Panch Mahabhutas का जैसे chronology, when they appeared, when they came into the being, उस हिसाब से हमने अपना खाना भी खाना चाहिए. Like अपने पंच महाभूतास हमें पता है कौन कौन से हैं, आकाश, वायु, अग्नि, वाटर, जल एंड पृथ्वी. तो सबसे पहले आया है the subtlest had come into the being is आकाश तत्व. तो आकाश तत्व क्या होता है, इट्स अ खाली, कंप्लीटली एम्प्टी रहता है. तो उन्होंने कहा आपका दिन की शुरुआत जो है आपको खाली रखना है, पेट आपका पूरा खाली रखना है. जैसे सुबह हमारा मिथ था कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, कंप्लीटली रॉन्ग. वो कहते हैं इट्स अ बाहर की कॉन्सेप्ट है, ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट है कि ईट लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ पॉपर. ही सेज इट, और बीच में वॉट एवर सो एंड सो, ही सेज इट शुड नॉट अप्लाई टू अस. He says morning you have to 10 बजे तक keep your stomach completely empty, because that is how nature works. So start your day with keeping your stomach empty. Work more in the morning because you have lots of energy in the morning. So instead of eating, उनका कहना है क्यों हमने सुबह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाते हैं तो डाइजेशन में मैक्सिमम एनर्जी यूज होती है हमारी. तो जो हमने इतनी एक्यूमुलेट रात को सो के आराम करके जो हमने एक्यूमुलेट करी हुई है एनर्जी है, वो हम सुबह अगर खाने में लगा देते हैं तो हम फिर अगेन आवर बॉडी गेट्स टायर्ड. तो 50% ऑफ एनर्जी हमारे डाइजेशन में चला जाता है, रिमेनिंग ओनली 50% फॉर द होल डे. और उनका कहना है खाने से हमें एनर्जी नहीं मिलती है. अगेन ही टॉक्स very elaborately about it कि food doesn't give you energy, period. He says period. No, don't give me any explanation. Food doesn't, energy you can get from so many other things except food. फूड से आपको ज्यादा से ज्यादा आपका पेट भरता है, आपको शांति मिलती है, आपको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन सप्लाई मिल सकता है उससे, और 2-3 other things he said which I don't remember, मैंने लिखना था मैं भूल गई. But then he says कि खाने से, क्योंकि उनका कहना है horse, he gave example of horse. We calculate energy in our physics by horsepower. So horse is the maximum symbol of energy. So he says what does he eat? He eats only घास फूस. तो कहते हैं ना आप घास से दोस्ती करो, घोड़े को कहते हैं घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या. इट्स अ पॉपुलर डायलॉग ऑफ whatever. So वो उनका कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा चने बाद में खिलाने लगे हैं घोड़े को, पर शुरुआत उसकी घास से हुई, और घास में देयर 0 कैलोरीज, 0 एनर्जी. तो अगर वो घास खा के इतने एनर्जेटिक रह सकता है, अरे दिन भर वो बैठता है नहीं, घोड़ा नेवर सिट्स, वी नो दैट, ही इज ऑलवेज स्टैंडिंग. सो इफ ही कैन हैव सो मच ऑफ एनर्जी बाय ईटिंग ग्रास, तो हम तो बहुत सारी चीजें अलग खाते हैं. तो खाने से उनका कहना है डोंट रिलाई कि हम जब तक खाएंगे नहीं हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. So what he says is that our in 24 hours 60% of the time our stomach should remain empty. Only 40% we should fill our stomach with food. And what food, he will talk about it later. So second, he says second element comes into the being. After Akash Tattva aata hai Vayu Tattva.
start the recording if anybody wants. Did I start recording? Anybody new? मैंने recording शुरू किया है इसमें. It's Yes, showing yes, recording. yes, 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 yes. yes. Started, Yeah, started. it is showing. Yeah, it's showing, right. Thank you. So वो कहते हैं कि वायु तत्व जो हमको मिलता है वो हमें पत्तों की सब्जी से मिलता है. जितने भी लीफी वेजिटेबल्स है उससे हमें ऑक्सीजन, जैसे वी नो दैट ऑल द लीव्स टेक it gives oxygen and takes carbon dioxide. So whatever oxygen हमें चाहिए है बॉडी में, सबसे ज्यादा हमें लीफी वेजिटेबल से ही मिलता है. So 10 बजे सुबह he talks about having green juice, that is he calls up to that green juice green blood also he says, because सारे जितने भी leafy vegetables आप ले सकते हो, like palak, mint, coriander, then you can add little amla in that, you can add lettuce leaves in that, you can add that what he was talking about, 1, 2, 3 more leaves, moringa leaves, it's very good, it's a super food. तो ये 2-3 चीजें, आप कोई भी पत्तियां देख लो, आप कहते हैं आपको मेथी भी डालनी है तो मेथी की पत्ती भी डाल दो, जो भी in the season whatever leaves you get, you make that juice and you can have a one full glass of as a breakfast 10 बजे पर. 10 बजे से पहले कुछ भी नहीं खाना है. 10 बजे बस एक वो खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं पीना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं खा सकते हो. So what he says, ये मैंने first time I understood this, no breakfast, otherwise breakfast will break you fast. This is his tagline for the breakfast, which I don't know, must be, because what I understood, it really helped me. Not having breakfast helped me a lot. So we have highest energy in the morning. If we eat breakfast, then all the energy there that he says diverted in the digesting the food we eat. Then third comes Agni Tattva, fire, which we get from the vegetables and sprouts. Lots of sprouts. So he says during lunchtime, you should be eating lots of vegetables, kacha, okay, no cooked vegetable, and sprouts. Even sprouts you should not cook. You should have, why we should not cook sprout? Because what he says, कि if we boil also, even sprout को boil भी करते हैं तो उसमें जो ग्रो करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है. आप कच्चे बीज को आप हमेशा, हम बॉईल करके तो बीज नहीं लगाते हैं पेड़ों, पेड़ अगर उगाना है हमको तो हम बीज को ऐसे ही डालते हैं मिट्टी में, तभी वो उगने लगता है. Similarly, अगर आप sprouts ऐसे ही खाओगे तो it will grow, it will give you more enzymes, it will give you more calcium. Sprouts में he says it's lots of proteins and calciums, and it activates our Jatragni, that is fire को हमारे activate करता है. So 12 बजे से 1 बजे के बीच में you should have your lunch. This is what lunch he calls. पेट भर के खाओ, मूंग खाओ, मटकी sprouts खाओ. But other than that you should not, because that chana vana, that is very much heavy on the stomach, so it may cause again problems. And raw fruits, vegetable produces insulin. He says it is very highly alkaline. Alkaline food pe he has insisted too much of alkaline food. Alkaline food is only you get it through vegetables and fruits and this sprouts, because it neutralizes the acid which is in our stomach. और एसिड तो आपका प्रोड्यूस होता रहता है बॉडी में, इट्स नेचुरली इट कीप्स प्रोड्यूसिंग. सो वी शुड नॉट अलाउ दैट एसिड टू बिकम मोर देन व्हाट इट नीड्स आवर बॉडी. सो यू हैव टू कीप न्यूट्रलाइजिंग बाय ईटिंग. अल्कलाइन को हम क्षार बोलते हैं आई थिंक हिंदी में, तो वो उस वाले हमें उस टाइप के हमें खाना चाहिए. एंड ही सेज वी गेट विटामिन डी आल्सो फ्रॉम this sprouts. So he says no, don't use fire while eat lunch. जब आप खाते हो तो fire पे कुछ cook किया हुआ कुछ भी नहीं खाना है. Now comes the fourth one, that is Jal Tattva. I will speak fast because lots of things I have to talk today, so I will be very fast today. Jal Tattva is fourth, that is he says Jal Tattva हमको कहाँ से मिलता है? जो snacks 5 बजे हम खाते हैं, नहीं sorry, उसके पहले 4 o'clock he talks about having medicinal juice. Medicinal juice means what? You should have karele ka juice, 2 karelas, 1 cucumber and 2 tomatoes. इसका आप जूस बनाइए और ग्लास भर के वो जूस पी लीजिए. आपको जिंदगी भर, वो कहता है कोई भी रोग नहीं हो सकते, कोई भी डिजीज नहीं हो सकते. एंड आई मस्ट टेल यू, इतना बुरा नहीं लगता है. मैं रोज पीती हूँ, अभी भी मैं पी रही हूँ, एंड इट इज नॉट बैड. एंड इनफैक्ट उसमें नमक नहीं डालना है, कंप्लीटली नो नमक, जस्ट हैव टू ड्रिंक इट and make it fresh and drink it. वो कहते 2 घंटे से बनाया हुआ कोई भी जूस हो या खाना हो नहीं खाना चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए, because it will not affect, give you effect as you want it to be.
So 5 बजे, हाँ, then now comes 4 o'clock, we should have this, then 5 o'clock he says you should eat whatever you like. अब taste buds के लिए खा लो, आपको पानी पूरी खानी है, पाव भाजी खानी है, आपको whatever you want to eat that time, snacks you can have it for your taste buds. 5 बजे. Now comes Prithvi Tattva. So this takes care of Jal Tattva, right? Now comes Prithvi Tattva. See, this is the way our universe, our जो ब्रह्मांड जो हमारा है वैसे ही बना है. सबसे पहले आकाश तत्व, उसके बाद वायु तत्व, देन कम्स फायर, देन कम्स पानी, जल तत्व, एंड फिर उसके बाद जो है सबसे स्थूल जो है पृथ्वी तत्व का जन्म हुआ है. तो दिस इज द ग्रॉस एंड द सॉलिड तत्व. सो डिनर शुड बी लास्ट, हमें डिनर लेना चाहिए, और डिनर शुड बी कंप्लीट फुल मील. रोटी सब्जी दाल you can have. If you are having roti, you can't have chawal. If you are having chawal, you can't have roti. So 2 carbohydrates not together. Also no wheat का रोटी, गेहूं की रोटी नहीं खानी है. आप ज्वार खाओ, बाजरा खाओ, नाचनी खाओ, मक्के की खाओ, but no, because that गेहूं की रोटी, it adds gluten to our body and which is not good. So 1 carb at a time. Don't mix 2 proteins also together. 2 दालें एक साथ मत बनाइए, 2 प्रोटीन की चीजें एक साथ मत खाइए. Only 1 protein at a time. And what he says that 80-20 के combination में you have to eat 80% of the sabzi dal and 20% of the roti or chawal, whatever you are eating. So 1 चपाती के साथ आप लॉट में नहीं सब्जियां खा सकते हो, लॉट में नहीं दाल, कितनी भी दाल पीनी है पी सकते हो, but रोटी और या चावल बहुत कम खाना है. Then he insists on having Sanjeevani Pay. Sanjeevani Pay is a drink which we have to make at home by heating water, warm water or boiled water. उसमें अदरक डालिए, फिर बंद कर दीजिए गैस को, उसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस और हनी डाल के आप पी लीजिए. तो ही से दिन भर वो आप कितनी भी बार पियोगे, आपकी एक तो भूख नहीं लगेगी, आपको उससे एनर्जी, आपको जितनी चाहिए, आप जो एनर्जी की बात करते हैं, ही से आपको जितनी खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी, इस ड्रिंक से मिलेगी. Plus, it will give you addition substitute for the tea or coffee which you want to have. So instead of tea and coffee, you can have this drink whenever you want to have. So no tea, no coffee, no milk. That is what he insists on. Milk to completely ban kar do apne system se, because he says it is too much of chemicals are into the milk nowadays. So you should, आप कितना ऑर्गेनिक बोलो या कुछ भी बोलो, आजकल का मिल्क पहले जैसा नहीं है. So you should stop having milk because active enzymes होते हैं उसमें which brings intolerance in us. तो जो lactose intolerance या जो भी होता है वो that because of milk. And milk causes gout, joint pain, and it is full of mucus and pus cells. तो जो 70% मिल्क रहता है वो सिंथेटिक रहता है. तो आपको जितने भी प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे करके, इमीडिएटली तो नहीं होते हैं, इन अ लॉन्ग पीरियड व्हाटएवर प्रॉब्लम्स वी हैव इन आवर बॉडी व्हिच इज बिकॉज ऑफ द मिल्क. व्हाट ही सेज इज दैट ओनली ह्यूमन बीइंग्स ड्रिंक मिल्क till the age of 70-80. Not other species, no other species drink milk more than 2 months as they are born. तो आप गाय के बछड़े को भी देखिए या भैंस के बछड़े को देखिए या काऊ अपने गोट के बच्चे को देखिए, किसी के भी बच्चे को देखिए, 2 महीने से ज्यादा अपने माँ का दूध पीते हैं. उससे ज्यादा वो किसी और का, गोट का बच्चा जाके गाय का दूध नहीं पिएगा या गाय का बच्चा जाके भैंस का नहीं पिएगा, एक दूसरे का दूध नहीं पीते हैं. हम ही ह्यूमन बींग्स हैं जो हम अपना छोड़ के बाकी सबका दूध पीते हैं, विच इज अगेन नॉट राइट एंड वी शुड स्टॉप दैट. सो आई एग्री विद दैट. So calcium, he says, is not necessary you get it from milk. You can get it from various products. इमली से कैल्शियम मिलता है, ये मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा. इमली में बहुत ज्यादा कैल्शियम रहता है. मोरिंगा लीव्स, वो जो ड्रम स्टिक की पत्तियां रहती हैं, उसमें बहुत कैल्शियम रहता है. मोरिंगा लीव्स तो हमें सबको पता है अभी, थैंक्स टू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमको नॉलेज बढ़ गया है कि मोरिंगा लीव्स इज अ सुपर 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 फूड. तो वो हमें अपने इसमें डालना चाहिए. बीच में एक वीडियो भी आया था जो हमने देखा था कि हमारे प्रधानमंत्री मोरिंगा लीव्स का पराठे खाते हैं. सो इट इज रियली गुड. So he says tea and coffee has 11 poisonous substances. 11. एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 11. Oh my God, that was too much for me to take because 2 कप चाय जो पीती हूँ वो भी बंद करवा दी उन्होंने. And tannin रहता है उसमें एक substance जो it's very harmful to us, which is used in the leather factories to soften the leather, and that is maximum in tea and coffee, is found in tea and coffee. And more, he has given all the names of the substances, chemicals, which I have written, but I don't want to now talk about it.
Now he says fresh fruits, vegetables, sprouted moves, ये सुपर फूड में आता है हाँ. Sprouted मूंग, vegetable, fresh fruit, cooked veggies except tomato. Tomatoes you should not cook. That is what he says. आप रॉ टोमेटो खाओ, बहुत अच्छा रहता है. इट्स सो गुड. टोमेटोज आर हाईली एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं और उसमें मेनी विटामिन एंड इवन कैल्शियम का सम मात्रा में रहती है. सो यू शुड हैव टोमेटोज. विटामिन सी तो रहता ही रहता है, बट कुक मत करिए टोमेटोज को. अगर सब्जी में भी डालना है ना तो पकाते समय ऊपर से डाल दो और तुरंत बंद कर दीजिए. डोंट कुक इट. Dry fruits and juices are all super alkaline foods. They increase healing power in our body and cleanse our body. And he insists that don't go by the clock. जैसे हम कहते हैं ना कि अरे 1 बजे का खाने का टाइम है, खाओ खाओ, भूख लगी नहीं लगी खाना खाओ. तो he says no, don't go by the clock. आपको जब भूख लगे तभी खाओ और जब प्यास लगे तभी पानी पियो. अगेन दिस वाज अ न्यू थिंग फॉर मी टू, बिकॉज सब कहते थे हमें 1 लीटर 2 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए ही चाहिए. तो मैं तो शुरू कर दिया था कि 2 लीटर की अपने अलग बॉटल्स भर के रखती थी, वो खत्म ही करना है. चाहिए ही नहीं चाहिए पानी, जबरदस्ती पीना ही पीना है. सेज नो, our body will demand water. When you demand the water, you should have the water, otherwise you should not have. See, everyone says different thing. What suits us, we should do that. Then alkaline diet जो रहता है वो कहते हैं बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हम उस खाद्य पदार्थों में अगर उसे यूज करते हैं तो हमारे एसिड, बॉडी के एसिड्स जो है उनका निर्माण भी कम हो जाता है और उसमें अल्कली जितना ऐड होता है उतने हमारे all the problems just vanishes by eating alkaline foods. That is what alkali बहुत उन्होंने use किया है, and you have to have that alkaline food. He says carbohydrates का excess consumption of anything is bad. So even carbohydrates अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो it increases fats, which we know. जैसे starch, excess starch produces acid. Sugar is very 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 bad. White sugar जो हम खाते हैं, because it is a processed, it is a refined, and it adds chemicals to our body, again difficult to digest. It is very very acidic in nature. जितने भी हमें bones की problem होती है वो because of sugar. ये तो हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए. उन्होंने कहा है क्योंकि आपको जितने भी जॉइंट पेन होता है या गाउट होता है या वीक बोन्स होते हैं, it is because of the sugar which we eat. And there is a phosphoric acid is in the sugar which creates osteoporosis. तो उनका कहना है कि अगर शुगर के जगह आपको कुछ ऑल्टरनेटिव खाना है तो शुगर केन जूस इज वेरी गुड. मेरे को खुशी हुई, ओ माय गॉड, आई फील सो गुड, एटलीस्ट कुछ तो मिला खाने के लिए, पीने के लिए. शुगर केन जूस इज रियली गुड, सो वी कैन कंज्यूम शुगर केन जूस विदाउट फीलिंग गिल्टी. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैगरी वी कैन हैव दैट ऑर्गेनिक जैगरी, वो व्हाइट प्योर क्लीन किया हुआ जैगरी नहीं, दैट ब्राउन जैगरी जो आता है वो जैगरी खाना चाहिए. रॉ हनी इज गुड. अंजीर डेट्स, आपको मीठा करना है तो यू कैन यूज अंजीर एंड डेट्स. हनी कम्स अंडर सुपर फूड, तो आप हनी तो जितना भी खा सकते हो खाओ. Potatoes are good carbohydrates. It's really good, but then he says don't peel the potatoes. Potatoes को आप without peel, उसका बिना छिलका निकाले ही जो potatoes है यूज करिए सब्जी में. It is really good. एक्सेस फैट खाना नहीं चाहिए, वो हमें पता है. जैसे एक्सेस ऑयल, एक्सेस घी नहीं खाना चाहिए. हमारा बॉडी डज नॉट रिक्वायर मच. उनका कहना है 1 टेबलस्पून से ज्यादा हमारी बॉडी डज नॉट रिक्वायर फैट. सो नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स में बहुत फैट रहता है, नेचुरल ऑयल्स रहते हैं. यू कैन हैव दैट अ लॉट which will not create any problem. But how to eat nuts and dry fruits? उनका कहना है नट्स अगर आप खाते हो तो उसको सोक करके खाइए, बिकॉज उसके में फिर से जो एसिडिक कुछ भी कंटेंट रहता है वो निकल जाता है. और एंड देन छिलके, बादाम खाते हैं, बादाम के छिलके निकाल के खाए. अखरोट को भी सोक करके खाओ, क्योंकि उसमें से देन ऊपर की जो लेयर रहती है ना अखरोट की, उसमें एसिडिक रहती है, उनका कहना है. सो इट कम्स आउट एज सोक करने के बाद वो चली जाती है, फिर कंप्लीटली हाईली अल्कलाइन हो जाता है अखरोट, और फिर आप वो खा सकते हो. अंजीर मनुका को सोक करके उसका पानी पियो, इट्स कंप्लीटली अल्कलाइन, तो इट हेल्प्स यू. सुबह आप उसको सोक करके उसका पानी पी लीजिए, उसके बाद वो खा लीजिए अंजीर मनुका. सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट, अगेन वेरी वेरी बैड. आयोडाइज सॉल्ट के नाम से जो हम खाते आ रहे हैं, वेरी बैड. वी शुड यूज रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, और it reduces water retention. So change your salt from white to rock salt. Then avoid non-veg food. He says it's not good because it causes ulcers. उसके खैर हमें उसके प्लस माइनस सबको बहुत पता है, पर one thing he told which was new for me to understand, कि उनका कहना है जो नॉन-वेज फूड खाने के लिए, डाइजेशन के लिए जो इंटेस्टाइन का साइज होता है ना,
वो बहुत छोटा होता है, which carnivorous animals eat. So for them it is very easy to digest, and that teeth and that those canines they use to eat, that helps them to mash that non-veg which they eat very easily. For them it becomes very easy to digest. पर हमारी जो intestine बहुत long रहती है, तो हमारे intestine में पड़ा रहता है, जो नॉनवेज खाते हैं वो पड़ा रहता है, डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एंड वंस द डाइजेशन के लिए टाइम लगता है तो उसमें से अगेन एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप वो नॉनवेज फूड को बाहर रख दो कुछ घंटे के लिए विदाउट कीपिंग रेफ्रिजरेट ना करते हुए, अगर आप 10-12 घंटे बाहर पड़ा रहेगा तो कैसा होगा, उसकी स्थिति कैसी रहेगी? It will smell, it will rot, it will whatever will happen to that. Similarly, it happens same in our body. So जो acid or the fumes which comes out, it toxifies our body a lot, which we don't understand. हमें लगता है हम बहुत प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं। आपको कहते हैं प्रोटीन के आपको बहुत अदर ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, बट नॉनवेज से प्रॉब्लम ज्यादा होंगी, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन and many things he was talking about. So try to avoid non-veg food. Then सेवा का सिद्धांत, अब अभी हो गया खाने की बात। अब उन्होंने कहा है कि सेवा करने से भी हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हम जितनी सेवा करेंगे उतना एक नेचर के लिए, क्योंकि हमने देखा है, ही इज टॉकिंग मोर ऑफ नेचर, तो नेचर को अगर हम देखेंगे, सो वी शुड लर्न फ्रॉम नेचर हाउ दे लिव, हाउ मच दे कीप गिविंग अस। हमें जैसे रिवर्स, ट्री, सन है, हवा है, ये हमें हमेशा देते रहते हैं, दे नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अस। ओनली ह्यूमंस हैव दिस हैबिट ऑफ टेकिंग, गैदरिंग, कंज्यूमिंग, और दो चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। तो हम अगर 80% लेते हैं तो हम 20% ही देंगे, अगर वो भी हमको आजकल अवेयरनेस आ गया इसलिए हमने देना सीखा है। पर हमारा अगर नेचर, इनहेरेंट नेचर देखो तो वो जो है होल्ड करने का ही है, सबसे लेते रहो, बट सेल्फलेसली हम बहुत कम देते हैं। हम देंगे भी तो हम कहेंगे अरे हम तो मेड्स को अपना इतना देते हैं, हम तो ड्राइवर को अपना इतना देते हैं, या तो हम सबको इतना देते हैं। ओह माय गॉड, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई हैव टू बी वेरी फास्ट। सो ही सेज कि नहीं, आपको सेल्फलेसली, जहां आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, आप उसको दो। आप नेचर को कितना रिटर्न कर रहे हो, आप पेड़ पत्तों से इतना फायदा ले रहे हो, पेड़ पत्तों को वापस क्या दे रहे हो? तो दिस ही गिव्स टॉक्स अबाउट लॉट दैट देना बहुत जरूरी है। Then law of service, start serving according to our senses, like food, money, clothes, time, knowledge. Knowledge, he says, is the highest service which you could give to others, that too without expecting anything. Then he talks of meditation, everything. वेदों में कहते हैं, this is very beautiful thing, वेद में कहते हैं कि 1 करोड़ बार आप अगर पूजा करते हैं, पूजा पाठ 1 करोड़ बार करते हैं, तो वो एक हवन के बराबर है। 1 करोड़ बार अगर आप हवन करते हैं तो वो 1 करोड़ जप के बराबर है, और 1 करोड़ जप जो है 1 बार ध्यान के बराबर है। इतना इंपॉर्टेंस है ध्यान। बहुत ज्यादा बात हो गई आज में, फिर थोड़ा सा और रहता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। अगर आपका मन, वो कहते हैं आपका मन बहुत अच्छा है तो आप अच्छे मानव बन सकते हो और अच्छे इंसान बनेंगे, और अगर आपकी बुद्धि अच्छी है तो आप बुद्ध बनेंगे। एंड विच इज अवर अल्टीमेट गोल ऑफ एवरीवन, कि हमें बुद्ध बनना है। अभी हम सोचेंगे यार क्या बुद्ध की बात करें, अच्छे इंसान बन जाए, बहुत है। यस, स्टार्ट विद अच्छे इंसान, बट अल्टीमेटली आइदर दिस लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, कमिंग लाइफ, यू हैव टू बिकम बुद्ध, बिकॉज दैट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ. So though he says that more we feed our diseased body, it will deteriorate. बीमारी में हम कम खाते हैं because we have to give time for it to recoup. Similarly, every time we have to eat less. योगा में हमें कहते हैं, हमारा योगिक डाइट जो हमें हमेशा शुरू से कहते आ रहे हैं 25 साल से, कि हमारा स्टमक का साइज अगर इतना है उसको 4 भाग में डिवाइड करो, 1/4 फॉर फूड, 1/4 फॉर एयर, 1/4 फॉर स्पेस एंड 1/4 फॉर वाटर. सो इतने में से अगर सिर्फ 1/4 अगर हमको खाना खाना है तो सोचो आपको हमें खाना कितना खाना चाहिए. सो खाना अगर हम कम खाएंगे तो हमारे बॉडी में या हमारे लाइफ में या हमारे शरीर में कभी भी कोई भी डिजीजेस नहीं होंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड वी विल ऑलवेज लिव हेल्दी. Now I am done with my talking. If you have any questions to ask, please ask, because we don't have any time for now meditation. So if you want to join this course, and if you have more questions, and if you have any doubts, you can ask. Unmute yourself, and we have
7 minutes left. Tai, this Anything? course is equal to doing a tap, huh? Yes. To Ask follow me. this diet अच्छा, and all. yes, exactly, Sangeeta. 15 दिन जो मैंने किया है, मैंने religiously, except for that wet thing what I told you, वो मैंने नहीं किया. बाकी everything I did. 1.5 किलो का वजन मेरा कम हुआ डिफॉल्ट, which मेरा नहीं था, but why default मेरा कम हुआ? मेरा stomach became very supple, very soft, which I had this. I don't have gallbladder. मेरा gallbladder का ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे stomach के थोड़े थोड़े इश्यूज रहते थे डाइजेशन के. कुछ थोड़ा ऑयली खा लो ज्यादा ये प्रॉब्लम, कुछ ये खा लो वो प्रॉब्लम होती रहती थी. पर 15 दिन में मैं रियलाइज हुआ कि my stomach was very comfortable, very supple, very soft. I never had any problem. Then thirdly, I realized that whatever I'm eating, I became so aware. जो भी मुंह में डालती थी 10 बार तो सोचती थी मैं ये क्यों खा रही हूँ, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, राइट खाना है कि नहीं खाना है. सो आई स्टॉप्ड कंप्लीटली ईटिंग दिस बिस्किट्स जो हम आते जाते थोड़ा बहुत खा लेते थे कि अरे ये तो ऑर्गेनिक बिस्किट है, ये तो फाइबर वाला बिस्किट है. सो आई स्टॉप्ड ईटिंग दैट कंप्लीटली. एंड टी कॉफी, I did not have tea coffee for 15 days, but now I am having 1 cup of tea in the morning. शाम का टी मैंने completely बंद कर दिया है. Instead of that, I am taking संजीवनी पे. संजीवनी पे तो मैं आते जाते 2-3 बार ले ही लेती हूँ, which really helps. और भूख भी कम लगती है आपको उसकी वजह से. And thirdly, that it brought that gratitude feeling for me कि हम खाते हैं, सच में हमारी बॉडी को नहीं चाहिए और हमें nature is giving so much to us and we are really not thankful to the nature what it is giving us. So that gratitude feeling came to me that 15 days and I became so thankful to this Dr. Sareen. Acha, I want to tell you one thing. When the day our program started, this workshop, डॉक्टर सरीन के फादर की डेथ हुई थी सुबह उस दिन और शाम को हमारा फर्स्ट सेशन था. And that person attended the session. I mean, he took the session with completely calm and poised and balanced way. And that really, हम लोग ने सबने बस ऐसे ही कर सके, हम और कुछ नहीं बोल पाए उनको. He says हमारी बॉडी अभी शाम को गई है और वो सब करने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद अभी आधा घंटा ही हुआ है. एंड आई एम सिटिंग हियर टेकिंग द सेशन बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड. दिस इज द इससे ये पता चलता है कि आपने वर्ड किसी को जुबान दी है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, या आपकी ड्यूटी इज सो मच इंपॉर्टेंट. वो कहते हैं डेथ इज इनएविटेबल, कभी ना कभी सभी को जाना है, उसका हम वी शुड सेलिब्रेट डेथ. वी शुड नॉट. सो ही सेज वी डिड नॉट क्राई, we did not say I did not want any condolence message from anyone. So एक चीज नई जो सीखने को मिली है apart from this from him is how to celebrate death and how to be calm and composed in the death also if someone dies in the family. So this is what मुझे सीखने को मिला from that workshop. I want everybody to do this workshop, really, क्योंकि हमें सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है. हम सब कहते हैं कि नहीं यार हम तो बहुत हेल्दी हैं, हम तो हेल्दी खाते हैं, हम हेल्दी लाइफस्टाइल है, हम तो आजकल एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, but still we are missing on so many things which you will get to know after doing that workshop. I don't know why I'm propagating this workshop. मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, but I feel that तुम लोगों को मिले, तुम लोगों को फायदा हो जो मुझे फायदा हुआ. आप लोग बहुत हेल्दी रहो, सब लोग हेल्दी रहो. And if we live healthy, so we can pursue our hobbies, we pursue our what path we are into. This spiritual path के लिए staying healthy is very very necessary. अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हम सुबह उठ नहीं सकते, ध्यान नहीं कर सकते, पूरा टाइम खाने में, पूरा टाइम ध्यान आपका वो पेन में और उसी में लगा रहता है. यार ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, रहने दो, आज मैं ये नहीं करती, आज मैं योगा नहीं करती, आज मैं वो नहीं करती क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. So we cannot pursue our spiritual journey if we are not healthy. हेल्दी रहना बहुत जरूरी है. इसलिए आप लोग अब करें. आपको 100% फायदा नहीं भी हुआ तो 80% 70% तो आपको उसमें से फायदा जरूर होगा. So any questions? We have 3 minutes left. अर्चना, Yes. ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं है? आशा, see, extreme हर चीज रहती है, उसमें से pick up things which you feel are good for you, which are good for your body. Every body will react to certain things differently. So you should. वो जो तुमने बोला that salt water, it's not possible for everybody, Archana. Which salt water that we drinking and taking out? अरे yeah, vomited. बीपी वालों को सॉल्ट नहीं डालना है ना ताई, उसने क्लियरली बोला है ना. बीपी वालों को सॉल्ट नहीं डालना है, वो आपको he will give instruction. अच्छा ताई, it is a matter of
conditioning. your mind. Don't give You us condition 2 your days. mind. See what 2 is days important you to do you. first Is, day comes. is it Asha? Is it your health is important to you, और मैं नहीं कर सकती is important to you? You have to give it a try. मैं सबको ये कहती हूँ try तो करो at least, and then you take a call what you want to do or what you don't want to do. और सबकी अच्छा, body क्योंकि अलग-अलग मुझे ना रहती है। नॉर्मल प्लेन वाटर में मॉर्निंग में पीती हूँ तो भी मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, प्लेन वाटर से भी 2 ग्लास तो से ठीक ज्यादा है, पिया तू 4 ग्लास प्लेन वाटर कर एंड वॉमिट इट आउट. गुड तो ना? इसका Good मतलब ना? Vomit ही तो करना है आपको ना? यू स्टार्ट डूइंग इट. या प्रीति? मैंने कहा वोमिट ही करना है, वही जरूरी है. हाँ, वही तो मैंने कहा. हाँ. अच्छा है, वॉमिट ही करना है, तो वही मैं कह रही तेरे को 4 ग्लास पी ले पानी, वॉमिट कर दे. लोगों को तो दे हैव टू वॉमिट कीपिंग योर यू हैव टू जस्ट पुट दिस 2 फिंगर्स at this अंदर टंग के वहां पे just दबाना है टंग and it just comes out. It just comes out. Or you just open your mouth and stay in the sink and it comes out. It's very easy. It is not difficult. Believe me, तुम लोग करो तो ट्राई तो करो, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा आपका. You have to do बहुत this अच्छी चीज है ये and अर्चना. yes, Preeti, I really want you and Bhaiya to join this and करो उसमें से pick and choose ना whatever suits you. Don't follow everything if you don't want to follow. It doesn't suit your body, your system, your circumstances, your house, your way of living. If it doesn't suit you, but something or the other will definitely suit you. अब मुझे Yeah. एक्चुअली कुछ पढ़ाना था, इम्पोर्टेंट मैंने चेंजेस ला सोचा था सकते हैं कि हम लोग. हाँ भैया, यस कुछ मैंने कहा इम्पोर्टेंट हाँ. चेंजेस हम लोग ला सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होंगे. यस, Yes. जो आपके यूजफुल है आप वो कर सकते हो डेफिनेटली. तो सभी के यूजफुल की कोई ना कोई चीज आपको मिल जाएगी. सो डोंट बॉदर. संजीवनी पे तो सबसे बेस्ट है. संजीवनी बहुत अच्छा है. संजीवनी पे अच्छा है. ग्रीन ब्लड जो ही व्हाट ही सेज, ग्रीन ब्लड, ग्रीन जूस विच यू कैन हैव, बिटर करेला जूस यू कैन हैव, वो भी खा पी सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. सी अगर हमें अपने बॉडी के लिए करना है ना तो नथिंग इज बैड. Yeah. मैं नहीं कर सकती टेस्ट के लिए, एवरीथिंग इज नॉट गुड. एंड हमें तो योगा में शुरू से पता है, 25 साल पहले से पता है, जितना टेस्टी खाना उतना गलत आपके लिए, आपके सिस्टम के लिए उतना खराब है. जितना खाना टेस्टी है इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ये तो मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मेरा खाना कभी टेस्टी नहीं बनता. मैंने कहा देखा, मैं सब